सो हाय एवरीवन। आज हमारे साथ हर्ष है और हर्ष हमारे साथ जो पहला आईपी का बैच था, जो पहला इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच था, उसमें थे। और हमने 2 महीने के अंदर अराउंड 500 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड ही इज वन ऑफ द सक्सेसेस ऑफ दैट बैच। एंड देन ऑब्वियसली एसडी Amazon, जब इन्होंने क्रैक किया, एसडी इंटर्न एट Amazon क्रैक किया, ही डिड नॉट स्टॉप ओवर देयर, ही वेंट फर्दर अहेड और एमएस मशीन लर्निंग रिसर्च आईआईटी कानपुर में इन्होंने आगे क्रैक किया और उसमें अभी काम कर रहे हैं। एंड द बैच दैट ही वाज इन वाज 2020-2022. Right. So rest, I would request Harsh to tell about his experience, what he has done post that 2018 batch, and how has been life so far. And it has been a long time since we met. And over to Harsh. हाँ हर्ष, कैसे Okay. हो भाई? बढ़िया भैया एकदम. So I started my journey in 2016 while doing BTech from JP Noida. So at that time I was new to this coding culture, and because I was a PE student during my plus two. So when I came here, I got to know that people already know these languages, Java and C++ and all, and I had no idea at all about these. So in the beginning, I got simple introduction from the college courses, but I understood that like it is a tough thing, and I cannot be able to get it started without some proper guidance. So at that time, some people suggested me that Sumit Malik sir is there, and you should join some foundation course under him. So the first course I joined with Sumit sir was data structures and algorithm using Java. So that was a foundation level course, but in that I learned a lot. I solved around 300 basic questions on every topic. So I got a brief idea about every topic, how dynamic programming and graph and strings and all, everything works. After that, Sumit sir told me to continue on this path by doing Code Chef and Code Forces. So I started that because I got pretty much idea that how everything works. So I continued that path in my college, like second year passed, and after the second year was completed in the summer time in 2018, I came back to pep coding and I asked Sumit sir, what should I do now? So he told me that you have time, you can prepare for interview in advance so that you can crack some good internships. So I joined pep coding, and that time you was my instructor in that course, and Sumit sir was mentor in that course. So that was a very good experience for me because that was limited student course. Only 40 to 50, 45 people were there, and everyone that I know from that batch is doing great in their life and big companies. So in that course, we used to come to class for 4 hours, and Bhaiya used to like teach us a concept and questions on that concept, and on that day only we used to get 10 questions on HackerRank related to that topic. We used to go to our home and solve those questions, and when we come back to the second class, Bhaiya used to discuss all the 10 problems. If problem is a simple and everyone is batch is comfortable, then the problem is skipped. Otherwise, it is discussed in detail. So by that, I got a very deep understanding of how recursion works, how these trees we draw. So uh, till that, after completing my second year summer intern, I was able, I was like pretty good with these things, and I was confident that I can crack any good internship because I saw interview experiences of Amazon, Microsoft kind of companies. So after that, I applied to few places, but at that time, if you are not from a very good college, a lot of things matters actually. So, but after, because I had time, so Sumit Bhaiya told me to explore some different techs like web development or machine learning. So I was not able, I was not sure what will be good for me. So
I tried everything. So I worked on Android web for 2 weeks, and then I got to know that machine learning is the thing which is best for me. So after that, I continued that part, and uh, around 1 year in college, I used to just do code courses, and apart from that, college courses, because I was confident that from pep coding course, I will be able to solve the interview question. So when in my college, I talked to few people that I want a machine learning profile. So people told me that after bachelor's, getting a machine learning profile is a very difficult thing, because if you just know concepts of machine learning, that is not sufficient for getting a job in it. So you should get some research projects experience. So for that, you should do some master's degree from somewhere, or if you are experienced in some company, then you will be able to get those profiles. So I started with gate preparation. So I searched on YouTube, and I saw a few people like how whole roadmap works, and I prepared my whole roadmap that in 1 year I'll be reading all the core subjects of my computer networks, OS and all, which we discussed in the IP batch also. So I read those in depth, because for Gate you need to know everything in depth. So basically, I learned DS and Algo from IB batch in depth. So I was confident that for Gate also, I can skip those courses, because so I focused on other courses like discrete mathematics, TOC, compiler, and all. And DS Algo was a cakewalk for me, because I was all the previous time I invested in that only. So I decided that I will not sit for placements, because I should have only one goal. But what happened is, in placement session, in the beginning only, Amazon came. And so everyone knows Amazon used to be our dream company in colleges. So because it was my dream from first year only, so I was like, एक चीट कर देते हैं, अमेज़न का दे देते हैं. तो सुमित भैया से मेरी बात हुई, नवदीप भैया से मेरी बात हुई, तो फिर मैं अमेज़न में बैठा, और अमेज़न मतलब मेरे लिए, मैं वो नहीं बोलूंगा, बट काफी आसान था निकालना. इतना कुछ मुझे पता भी नहीं चला. मुझे ये था कि सर ने जो क्वेश्चन क्लास पे डिस्कस कर रखे थे, वो एकदम उन्होंने पूछे, और मैं उन पे प्रिटेंड भी नहीं कर पाता था कि मुझे नहीं आ रहा. मैं एकदम बता देता था कि हाँ ऐसे ऐसे होगा. तो फिर मैंने काफी साफ कोड वोड लिखा, तो इंटरव्यूअर थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया कि इतना क्लीन कोड, इतना अच्छा डीबग और ये वो. तो वो सब मैं यहाँ से सीखा था, क्योंकि इतना अच्छे से डीबग सुमित भैया जितना अच्छा डीबग कोई नहीं करता. फिर उसके बाद अमेज़न हो गया. तो उस टाइम भी लोग मुझसे बोल रहे थे कि इतनी अच्छी जॉब लग गई है, 28 LPA का पैकेज है, इंटर्नशिप के बाद PPO का कोई सीन नहीं, मतलब मिल ही जाता है, 12,000 राउंड होता है, अच्छे से काम करो. तो पर मतलब मेरे मन में था कि मुझे ML प्रोफाइल ही चाहिए, और तो मैं गेट की तैयारी अपनी करता रहा, और गेट का एग्जाम हुआ, और उस टाइम मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी. तो फिर इंटर्नशिप ज्वाइन करने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, क्योंकि कॉलेज में फास्ट ट्रैक सेमेस्टर था, क्योंकि 8 सेमेस्टर का पूरी इंटर्न में देनी है, तो वो आपका 7 सेमेस्टर को डबल हेवी कर देते हैं, क्रेडिट्स बढ़ा देते हैं. तो मैं गेट में लास्ट में थोड़ा फोकस नहीं कर पाया, बट 349 ऑल इंडिया रैंक मेरी आ गई गेट में. तो उस टाइम मैं इंटर्न कर रहा था अमेज़न में, और मैंने भैया से भी बात करी कि भैया क्या करना चाहिए. मैंने और भी कई लोगों से बात करी, डिस्कस किया है पूरा कि क्या करना चाहिए. तो सबका एक था कि तुमने अभी अमेज़न निकाली है, तुम बाद में भी अमेज़न जैसी कंपनी क्रैक कर सकते हो. अगर तुम 2 साल अपने इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई टॉपिक बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, तो तुम जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर उसके बाद मैंने IIT बॉम्बे, मद्रास, सब जगह अप्लाई किया. मेरा मतलब हर जगह से कॉल आ गई. कानपुर में मुझे कंप्यूटर विजन और NLP में मुझे काम करना था, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने मतलब प्रोफेसर से बात करी, और अपना रिसर्च की जर्नी स्टार्ट कर दी है. तो अभी तक का यही था पार्ट. परफेक्ट. एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों को आता है, वो ये आता है कि मतलब रिसर्च कितना हेल्प करती है सब्जेक्ट की मास्टरी में. मतलब लोगों को दो व्यू होते हैं कि मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, मैं अमेज़न में जाके काम करता हूँ, और एक मैं IIT कानपुर में, जैसे कि मतलब आपने हायर स्टडीज भी कर ली,
तो दोनों में से लर्निंग एक्सपीरियंस किसका ज्यादा अच्छा है, वो एक डाउट है काफी लोगों को। या मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि डीएसएलगो या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम करते हैं, लेकिन कंपनी में तो हमें डीएसएलगो या कॉम्पिटिटिव पे काम नहीं मिलता, ऑब्वियस है। तो डीएसएलगो और कॉम्पिटिटिव हमारी हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड रेस करने के लिए। तो वो हमारी डे टू डे लाइफ में कंपनी में काम करते टाइम काम आता है। वो बेसिकली काइंड ऑफ एक जिम है जिससे आपने अपनी मसल ट्रेन कर लिया और अब आप काम कर सकते हो। तो रिसर्च का ये रहता है कि एक आप रिसर्च एप्टीट्यूड जब डेवलप हो जाता है ना, तो जब आपके पास आप जैसे किसी बड़ी कंपनी में सपोज गूगल है, तो ऐसी कंपनी में जब कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एक ऐसा बंदा जिसका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड अच्छा है, वो उन प्रॉब्लम्स को बेटर ट्रैक कर पाता है। क्योंकि अगर एक बंदा वेब डेवलपमेंट करता है, तो वो मोस्टली अपने फ्रेमवर्क्स को जानता है और जिस चीज़ में वो अटकता है उसके लिए स्टैक ओवरफ्लो की हेल्प लेता है। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर का और एक रिसर्चर का एक माइंडसेट अलग होता है। उनको पता होता है कि हमें हमेशा जो प्रॉब्लम मिलने वाली है, वो स्टैक ओवरफ्लो पे अवेलेबल नहीं होगी। हमें उनके लिए पेपर्स पढ़ने होंगे, हमें उनकी सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करने होंगे और वी आर द वन हू विल पोस्ट इट ऑन स्टैक ओवरफ्लो। सो ये डिफरेंस होता है कि डेप्थ की नॉलेज हो जाती है। परफेक्ट, परफेक्ट। एक आखिरी चीज, मतलब काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब जो काफी पैशनेट होते हैं एमएल के लिए और डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए, और भी काफी स्ट्रीम्स होती हैं डेटा में, जैसे वो बिग डेटा की तरफ चले जाते हैं लोग। तो डेटा इतना क्रिटिकल हो गया है, तो मतलब कुछ लोग इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करना चाहते हैं, कुछ लोग खुद से भी चीजें करना चाहते हैं, जो प्रोबेबली जिनके पास हायर स्टडीज के लिए इतनी बैंडविड्थ नहीं है। तो मैं एक चीज जरूर आपसे मांगूंगा कि आप कुछ रिसोर्सेज या कुछ गाइडेंस उनको प्लीज बता दें, बिकॉज आपका जो 2 ईयर का जो बेसिकली मतलब जो अभी तक की जो जर्नी आईआईटी कानपुर में जो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, उससे लोग बहुत 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 मतलब उसको उससे हेल्प मिलेगी लोगों को। सो एनी तो गाइडेंस? मेरा मेन मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही था कि आईआईटी में जो भी जैसे प्रोफेसर्स हैं, तो उनका जो लेवल होता है वो ग्लोबल लेवल के प्रोफेसर्स होते हैं। जैसे हमारे जो मशीन लर्निंग के प्रोफेसर थे, वो इससे पहले ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और काफी सारे प्रोफेसर है जो वर्जीनिया टेक वगैरह के एचओडी रहे हैं। तो ऐसे प्रोफेसर्स मिलते हैं आईआईटी में। उनका पीएचडी टॉप यूनिवर्सिटी से होता है, स्टैनफोर्ड, यूसी बर्कली टाइप। और मतलब उनका जो तरीका होता है रिसर्च कंडक्ट करने का, वो ग्लोबल लेवल का होता है कि जिसमें आप मतलब जैसे आप छोटे मतलब अपने कॉलेजेस में देखेंगे, तो मतलब एक जो तरीका होता है वो इंडियन तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जैसे रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं, बाहर की दुनिया में होती हैं, वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो हर जगह रहे होते हैं। तो विदाउट गाइडेंस इस टाइप के काम करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है? तो मेरा पर्सनल थोड़ा-सा ये रहता है कि अगर मुझे कोई कोई चीज़ पढ़नी है, सपोज़ मशीन लर्निंग की, तो मतलब मैं स्टैनफोर्ड या ऐसी किसी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेता हूँ। और या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उसका पेपर पढ़ लेता हूँ। मतलब तो मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी मतलब मैं कोई अनऑथेंटिकेटेड चीज़ फ़ॉलो ना करूँ। मैं ऐसी चीज़ फ़ॉलो करूँ जिससे गारंटीड है कि ये चीज़ मतलब अगर कोई लेक्चर मुझे कंप्यूटर विज़न का अगर मुझे स्टैनफोर्ड की के यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, तो मुझे पता है ये टॉपिक इन्होंने पढ़ाया है, तो ये सही ही होगा। तो थोड़ा-सा मतलब इस टाइप से रहता है। जी बाकी मतलब स्पेसिफिकली तो डिपेंड करता है सबके अपने काम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मतलब आई थिंक मतलब जो जेनरिक ऑडियंस के लिए मुझे बात करनी थी वो मैंने कर ली। अब मतलब वेब कोडिंग में हम कुछ कुछ कोर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बारी वो आपसे रिव्यू करवा लेता हूँ कि जो आप बातें कह रहे हो कि भाई मुझे मतलब यू नीड टू गो टू दी ऑथेंटिक सोर्स, कि मतलब अगर मुझे एमएल का कोर्स करना है तो आई नीड टू गो टू दी एंड्रू एनजी पार्ट। बट मतलब हमारे पास मतलब everybody is not able to understand what हुँ, Andrew हुँ, NG is explaining. हुँ, For हुँ, example, मेरा हुँ, छोटा भाई है, he was in the commerce department and he has into commerce for a lot of while. Now he wanted to shift to this coding part and हुँ, हुँ, I told him कि यार तू सुमित भैया का बैच कर ले, सुमित भैया की वीडियोस हुँ, देख ले and you would be able to do great, और बीसीए हुँ, कर ले। और इस तरीके से मैंने उसको सजेस्ट किया, उसे नहीं समझ में आया, he had some हुँ, gaps in his maths। मैंने हुँ, हुँ, खान अकेडमी सजेस्ट किया, तो खान अकेडमी से मैथ करना सीख। उसे वो वाले पार्ट को समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई।
सो मतलब मैं आपको हमारी मतलब कुछ सब्जेक्ट्स की पेडागोजी दिखा देता हूँ और मतलब जस्ट अ फ्यू व्यूज अराउंड इट। मतलब मेन चीज तो मैं एक आपकी बात पे एग्री करूंगा कि डायरेक्टली कोई अगर स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स देखे जाके तो उसके लिए समझना बहुत इजी नहीं होगा, मतलब क्योंकि हमें बेसिकली एक किक स्टार्ट चाहिए होता है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले कॉम्पिटेटिव स्टार्ट करने से पहले सुमित भैया का कोर्स कर लिया, सुमित भैया ने सब चीजों को बहुत आसान बना के सिखा दिया। तो उसके बाद वो चीजें किक स्टार्ट मिल गया, उसके बाद मतलब जो टफ पार्ट था कोड फोर्सेस वगैरह, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं सीधा कोड फोर्सेस पे जाता मैक्सिमम महीना कर पाता और उसके बाद उससे डिप्रेस होकर उसको बंद कर देता। तो एक हमें मतलब एक पर्सनल इस टाइप का इंसान चाहिए जिससे हम मतलब बड़े भाई की तरह डाउट पूछ सकते हैं, सीनियर की तरह डाउट पूछ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एंड्रू एनजी का अगर कोर्स कर भी रहे हैं, पहली बात तो हमें थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है। और जब जैसे भैया जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं चीजें, तो उसमें भैया एक बार को हमें हमारा लेवल देख के हमें समझाते हैं कि अच्छा इस बंदे को मैथ्स की ये इक्वेशन भी नहीं समझ में आती होगी, इसको ये भी डेप्थ में बता देता हूँ। वो डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस रहता है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं वो पेडागोजी देख लेता हूँ। आपका काफी टाइम ले लिया मैंने। अरे कोई और बात नहीं। हाँ जी, सो बेसिकली ये तो जैसे ये नाडोज है, राइट? और मतलब दिस इज न्यू प्लेटफॉर्म दैट वी हैव क्रिएटेड, और इसके बारे में एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा आपको कभी, बिकॉज दिस विल टेक टाइम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन वाज कि इस तरीके से 4 डिविजन्स हैं। कंटेंट इज व्हाट वी विल मेनली फोकस ऑन, कोर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पॉइंटर्स और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लो लेवल सिस्टम डिजाइन है, दिस इज पॉइंटर्स इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन डेप्थ। तो अभी मतलब सुमित भैया क्या कर रहे हैं, स्केल पे कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं। पहले वो क्या करते थे कि भाई क्वालिटी पर वो ज्यादा फोकस करते थे और उसकी वजह से क्वांटिटी नहीं आ पाती थी। अब भैया क्वांटिटी विद ऑप्टिमाइज्ड क्वालिटी करके कुछ काम कर रहे हैं। ओएस के ऊपर भी हमने कुछ काम किया है। ओएस को देयर इज दिस वन बुक कॉल्ड ओ स्टेप्स, मतलब ऑब्वियसली बुक्स को रेफर करके ही सारा कोर्स बना रहे हैं। So we started with Gelvin, but Gelvin was a little difficult to understand. And then we came across this book called Operating System in 3 Easy Pieces. And this book is completely freely available, like open source book. And it has virtualization. And we kept it like, इसके अलावा हमने ये हार्वर्ड का कोर्स भी थोड़ा किया है, but mostly the main reference was this. And similarly, this is where it has gone. Yeah. एक minute, just a second. Yeah. So यहाँ पे this content bit, this is virtualization part, this is concurrency part, this is the persistence part which this professor is talking about. इनका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, रेमजी। तो हाँ, एंड देन एट द एंड हमने यहाँ पे केस स्टडी डाला है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और असाइनमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ये हार्वर्ड वाले कोर्स की। और इसके अलावा डॉकर एंड क्यूबरनेटिस, इसके आगे और एक्सप्लोरेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं। Then, if I talk about DBMS, तो obviously जेनिफर वीडम से ऊपर तो कोई है नहीं। तो this was the mentor for Parag Agarwal as well. और काफी सारे लोग who are into research, they are making big into this industry, and like we are taking care of these courses. अभी यहाँ पे दो कोर्सेज हैं जो मेनली लेफ्ट आउट हैं, which is DBMS and computer networks. DBMS would most probably come by 7th December, मतलब कल end of the day तक मैं डाल दूंगा, and computer networks would come by 10th of December. And then we'll make sure कि हम इसके अंदर गेट के क्वेश्चंस ऐड कर दें, एक लर्निंग जर्नी बना दे बच्चों के लिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो this is what we have, and इसके अलावा it has lot of practical applications as well, lot of assignments that we have taken from these Stanford and Harvard courses, जो मतलब the real sources are these things only. And इसके अलावा we are little diffident in terms of creating that practical content for computer organization, digital logics, for engineering mathematics और general aptitude में तो क्या practical बनेगा, मतलब we have to solve questions. So right now the approach that we are going to take on computer organization and digital logics is making sure that students solve as many questions as possible. And for the theory of computation compiler design, we are trying to come up with a small programming language
which can be created, कोई बच्चों के लिए बना दे, बट इफ नॉट दैट विल मेक श्योर कि हम मतलब ज्यादा से ज्यादा गेट की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दें, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करवा दें. एक पार्ट तो जिसमें हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इज द कोर कंपनीज प्रोग्राम, एंड गेट का हाफ कंटेंट जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, OS, DBMS and computer networks and the data structures and algorithms, pointers and hoops, we are very confident on that part, क्योंकि उसके ऊपर तो हमारे पास छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, and we are very confident on that part. जो सेकंड हाफ है उसके ऊपर हमने ये किया है कि we have solved lot of questions, but we are still trying to figure out some practical assignments so that कि जैसे for example, I'm not sure, but like what I have heard about is of course from like from you or other sources that we have is that just cracking it is not enough, then you have to give other interviews as well to get into these higher education institutes. So thing is, if you got very good rank, so then you don't have to give the interview. So if your rank is not that good, in that cases there is interview thing in few IITs, not all. Like IIT Delhi used to conduct interviews, and IIT Madras used to conduct, and not every other IIT. Okay. So मतलब like I just wanted to know your review. क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मेरा भैया मेन रिव्यू इस पे है कि गेट का कोर सब्जेक्ट्स का जो भी एक्सपेक्टेशन होता है गेट एग्जाम का, तो गेट एग्जाम आईआईटी के प्रोफेसर्स बनाते हैं. कभी आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कराता है, कभी कानपुर, कभी मद्रास, ऐसे. तो उनका क्या रहता है कि वो ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा बीटेक में पढ़ के आया है उसको कोर की नॉलेज स्टैंडर्ड बुक से हो. तो जैसे आपने गैल्विन बोला, नवाते बोला, डीएस एल्गो के लिए कॉर्मन बोला, तो वो ऐसी क्वेश्चंस से क्वेश्चन डालते हैं, या फिर मतलब उनका कंटेंट जो होता है, अगर आप इन बुक्स को रेफरेंस रख रहे हो तो फिर आप जो भी कंटेंट बनाओगे वो गेट ओरिएंटेड है. और क्योंकि उन्हें ऑथेंटिकेट चीज चाहिए और वो इन्हीं बुक से आ सकती है. तो अगर आप इसके अलावा ओएस की कोई और किसी अगर अदर ऑथर्स की बुक पे जाते हो तो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि फिक्स है कि ये बुक्स इस सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड है. तो उसी बुक को अगर आप पढ़ लोगे, तो क्योंकि बुक पढ़ना बहुत टफ है, उस बुक को अगर आप पढ़ लोगे लिटरली में तो आप क्रैक कर सकते हो आराम से, क्योंकि उस बुक से ही कंटेंट आने वाला है. तो अगर उस बुक का कंटेंट आपने इजीली अवेलेबल कर दिया, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना दी, तो दैट इज इनफ. और मेन लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गेट के जो लास्ट 35 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उससे पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और लास्ट में, एकदम लास्ट मोमेंट में, जब 1 या 2 महीना रह जाता है, तब टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस की, उसमें एकदम मॉक 3 आवर्स का गेट हो, कुछ टॉपिक वाइज हो कि डीएस का एक है, एक सीएन का है, 1-1 घंटे का टेस्ट, और फिर लास्ट में 3 आवर्स के एग्जैक्टली जैसा गेट का एग्जाम होता है वैसा. तो मतलब ये पैटर्न है मेनली. परफेक्ट. मैं बस रिपीट कर रहा हूँ चीजों को. मतलब आप गेट का कंटेंट अगर बना रहे हो तो यूज स्टैंडर्ड बुक्स. फॉर एग्जांपल ये तो नवाते, गेल्विन, कॉर्मन एंड फ्रोजन कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए इस तरह की बुक्स. एंड सेकंड पार्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने बहुत जरूरी है, पैटर्न समझ में आ जाता है, और आखिरी में टेस्ट सीरीज करनी बहुत जरूरी है, एंड यू वुड बी एबल टू क्रैक गेट. तो इसमें मतलब वो खुद ये बुक सजेस्ट करते हैं. इसके अलावा मोस्टली क्योंकि वो आईटी प्रोफेसर बना रहे हैं तो एनपीटीएल को प्रमोट करते हैं कि एनपीटीएल क्या वीडियो देख लो. तो एनपीटीएल की वीडियो काफी बोरिंग होते हैं, तो आप एनपीटीएल के वीडियोस की लैंग्वेजेस को काफी आसान भाषा में बना के उसको भी टॉपिक को समझा सकते हैं उस चीज से भी. हाँ, एक चीज जो हमने मतलब मेनली जो सुमित भैया ने मेरे को काम दिया था, जैसे ही मेरे को हायर किया था, रीहायर किया था, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि ये कनेक्ट द डॉट्स नाम की फिलॉसफी है, कि मतलब वी लर्न समथिंग इन अ स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, कि काफी सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो राइट नाउ like we are 22, we are a team of 22 engineers, and we have reached to a point where we are able to learn 432 pages of a difficult book in a day. उसमें हम करते ही है कि पहले pages distribute करते हैं, फिर everybody learns like their 20-25 pages, और फिर आकर वहां पे समझाते हैं और वहां पे चीजें करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट हमने मतलब गेल्विन कंप्लीट किया है. गेल्विन से हमें थोड़ा सा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो हमने एक और बुक उठा ली.
नवाते ही मैंने उठाई, कॉर्थ उठाने गए तो कॉर्थ में बहुत इजी टेक्स्ट था, नवाते वाज मच मोर इन डेप्थ, एक एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ही पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने, इतनी प्यारी बुक है नवाते। तो मैं एक मेल लिखूंगा उनको कि मैंने बिकॉज पढ़ी है ऑफ वो यू, बुक, हाँ मतलब मैं उनसे सीटीडी, मिला भी हूँ नवाते से, अरे क्या कॉन्फ्रेंस बात में है, आए थे। अरे क्या बात है। मतलब ये सबसे अच्छी चीज है कि मतलब एट आईआईटीज, एट दिस इंस्टीट्यूट्स, यू आर एबल टू लाइक कनेक्ट टू दीज पीपल, लाइक द रियल जेम्स, जिसकी वजह से मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आगे चलती है, इन जनरल कोई भी इंडस्ट्री आगे चलती है। एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में तो मतलब मेनली हमारे जो गाइडिंग लाइट थे वो आपके कॉलेज से थे, सिद्धांत गुप्ता, अगर आप जानते हो तो, वो 2019 ग्रेजुएट थे, उसने, उसको फ्रोजन काफी अच्छी आती थी, हमारी टीम के एक मेंबर है वो। और वो बोला कि सीटीडी तुम करो, मैं तुम्हारा एसएमई बन जाऊंगा। मतलब हम पहले ये करते थे कि कोई भी बुक उठाते थे और उसको अच्छे से पढ़ लेते थे, लेकिन फ्रोजन पे तो वो बोला कि तुम्हें कहीं पे डाउट आएगा ना, मेरे को अच्छे से आता है। जैसे मेरे को कॉर्मेन बहुत अच्छे से आती थी, वो मतलब पेज नंबर के साथ याद थी, वो बोला कि फ्रोजन तो मैंने सब, मेरे पूरे बैच को मैंने ही पास करवाया है। तो ही काइंड ऑफ बिकेम एन एसएमई, मतलब हम उस तरीके से किया है। तो ये चीजें की हैं हमने, और चलो ठीक है, मतलब परफेक्ट मेक सेंस बुक्स, और ये अपना प्रीवियस ईयर पैटर्न और टेस्ट सीरीज, सो अभी तक तो हम यही सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है हर्ष, आई थिंक दिस वाज ऑल, मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर, द टाइम। थैंक यू भैया।